Good morning, student. Today we discuss about the back cross. So what is first? We have to know that the back cross. Back cross. It means to that there may be cross between always be a two parents. That is a parent which can be have belong to one male and one belongs to the female. So there may be here is just male and female as a parents which can be crossed with each other and gives rise to be the new individual or their offspring. But such offspring which can be again crossed with their one of the parents is known as to be the back cross. तो जैसे प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके थे कि बैक क्रॉस ये ऐसा एक क्रॉस है जिसमें मैंने कहा था कि मोस्टली ये प्लांट्स में होता है जिसमें ब्लड रिलेशंस नहीं माने जाते। मोस्ट ऑफ एनिमल्स में भी होते जहां ब्लड रिलेशन नहीं माने जाते। ह्यूमन में ऐसा बैक क्रॉस नहीं होता। तो कंसिडरेशन में मैं यहाँ समझने के लिए ऐसा बोल सकती हूँ कि जो बच्चे होते हैं वो बच्चे ही खुद ब खुद अपने माँ बाप से यानी फादर या मदर किसी एक के साथ अगर वो मेट करते हैं या फिर क्रॉस होते हैं तो नई इंडिविजुअल्स जन्म लेती है, उसे कहा जाता है बैक क्रॉस। So here we have to just what is actually mean as the back cross by definitively. So it is an one of the cross in which there may be a F1 hybrid individual which can be crossed with any one of the parent. Any one of the parent is known as to be the back cross. So here is back cross is considered one who dominant back cross and another one who's the recessive back cross. तो डोमिनेंट बैक क्रॉस क्या है या रिसेसिव बैक क्रॉस क्या है? यहाँ कोई ऐसा डोमिनेंट बैक क्रॉस या रिसेसिव बैक क्रॉस नहीं, ओनली बैक क्रॉस कहा जाता है। लेकिन आपके समझने के लिए मैं डोमिनेंसी के साथ भी बैक क्रॉस समझा के दूंगी और रिसेसिव के साथ भी बैक क्रॉस समझा के दूंगी। सो मे बी यहाँ पर हम लोग किसी एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो हमें पता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो क्रॉस इन विच देयर मे बी प्योर पेरेंट्स which have only a single pair of the contrasting character and cross to form as to be one of the hybrid individual। तो बिल्कुल उसी तरीके से कंसीडर करते हैं कि मे बी यहाँ पर हमने पेरेंट्स लिए हैं। ओके, सो पेरेंट्स मे बी एज वन हु मेल and one who has to be the female, considered that। then मे बी फिनोटाइप उनका कंसिडर अगर करते हैं, बैक क्रॉस जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कंसिडर करेंगे या अंडरस्टूड करेंगे तो यहाँ मेल टॉल कंसिडर करते हैं एज फिनोटिपिकली और फीमेल एज टू बी द ड्वार्फ कंसिडर करते हैं फिनोटिपिकली। ओके, देन इनका जीनोटाइप क्या होता है? So in previous we have to study as tall, which is indicated by a capital letter, first letter as the capital T because any one character which can be used by the allele pair. Then there may be one which can be shown as the contrasting character in a pair as small t. Okay. Then there may be both of them which can be formed as gametes in their body. So male which can be formed the gamete as a homozygotic because there may be alleles are the pures. So only T named as to be the gamete is formed. Then here is in a female may be pure dwarf. So it is a homozygous. So gametes also the homogametic as female. So also it is one of the type of gamete. It means male which can be have two formed in their body is a similar type of gamete, that is homogametes. All gametes are similar. Here female also has a homogametic, all gametes are to be similar. Then we followed as to be the cross to give rise to be the F1 hybrid. So male gamete fuses with a female gamete. So considered to give as like this as to be the mixing of two gametes as zygote is formed and zygote gives rise to be the new individual. But such a new individual is called the F1 hybrid offspring or F1 generation. Also it is called the F1 generation or the hybrid individual. Such individual, ये जो individual है या यहाँ पर जो भी नया एक जो उनकी ऑफस्प्रिंग जन्म ले रहा है उनकी F1 जनरेशन में उसकी अगली पीढ़ी में, तो इस तरीके से
मे बी ये जानबूझ के क्रॉस किया हुआ है, ये सेल्फिंग नहीं है, बाय नेचुरली नहीं हो रहा है। अगर नेचुरली होता तो शायद ड्वार्फ से नहीं, या टॉल अपोजिट ड्वार्फ ही नहीं होता, टॉल टॉल से भी हो सकता है, टॉल मेल टॉल फीमेल से भी मेट कर सकता है। बट यहाँ हमने आर्टिफिशियली किया है, हमने जानबूझ के टॉल मेल ड्वार्फ वाली फीमेल के साथ ही फ्यूज किया है, क्रॉस किया है। यानी टॉल के लिए जो गमिट्स था मेल गमिट, वो ड्वार्फ वाले फीमेल गमिट के साथ ही जानबूझ के आर्टिफिशियली फ्यूज करवाने के बाद हमें जो ऑफस्प्रिंग मिलेगी, वी हैव टू जस्ट नोन दैट देयर मे बी मिक्सिंग ऑफ द टू जेनेटिक मटेरियल इन अ एलेलिक पेयर, one who has a dominant gene and one who another has to be the recessive gene, but such individual is maybe the tall। यहाँ जो इंडिविजुअल जन्म लेगा, जैसे ही पौधा बड़ा होगा तो वो एक प्रॉपरली, जैसे उसका फादर या जो भी उस पेरेंट्स में से मेल प्लांट जो भी हमने कंसीडर किए थे वो टॉल था, तो ये भी पूरी तरीके से पूरा फुल ग्रोन हो जाएगा तो टॉल नजर आएगा। तो मे भी यहाँ पर अगर मानते हैं कि ऐसी इस तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉस होने के बाद भी, या जो पेरेंट्स जो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर में थे, उन कॉन्ट्रास्टिंग पेयर में होने के बाद भी जब क्रॉस करते तो F1 हाइब्रिड जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग है ऑलवेज भी टॉल मिलेगी। तो कंसिडरेशन में यहाँ पर जो टॉल है, तो यहाँ मान के चलते कि इनमें से जितने भी इंडिविजुअल टॉल मिलने वाले हैं, जरूरी नहीं एक ही मेल गमिट होगा या एक ही फीमेल गमिट होगा, इनमें से कई सारे मेल गमिट, कई सारे फीमेल गमिट, कई इंडिविजुअल्स को बारी बारी F1 जनरेशन में वो जन्म देंगे। जैसे हम बोलते कि एक पोड में एक दाना नहीं, 4 दाने, 5 दाने, 6, 8 दाने, यानी पी के जो बीजे होती है, बटाने की जो बीजे होती है वो एक नहीं कई सारी होती है। एक बीज, दूसरी बीज, तीसरी बीज, उसमें से जो टॉल प्लांट जन्म लेगा वो मेल करके भी जन्म ले सकता है और फीमेल करके भी जन्म ले सकता है। तो यहाँ जो F1 हाइब्रिड की ऑफस्प्रिंग है वो मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है। ओके, मे बी अब ये जो F1 हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग है, हमारा डेफिनेशन ही क्या है बैक क्रॉस के लिए, कि ये जो F1 हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग है ये बैक इससे क्रॉस करेगा एज टू बी द मेल और बैक इससे क्रॉस करेगा एज टू बी द फीमेल। ओके, पर यहाँ मैंने फिर से एक ट्विस्ट कहा था कि हम पढ़ने वाले हैं डोमिनेंट बैक क्रॉस और रिसेसिव बैक क्रॉस। तो मे बी यहाँ जो इंडिविजुअल F1 हाइब्रिड में मिला है वो अगर टॉल है तो मे बी थ्रू द लॉ ऑफ मेंडल, अ लॉ ऑफ डोमिनेंसी बाय द नेचर का जो लॉ ऑफ डोमिनेंसी जो मेंडल ने ढूंढ के निकाला है, फाइंड ऑफ किया है, उसके अकॉर्डिंग टू अगर हम देखते हैं तो F1 हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग जो भी यहाँ पर जेनेटिक कैरेक्टर अपीयर करके फिनोटिपिकली वही डोमिनेंट मानी जाएगी। तो यहाँ पर जो मेल है वो डोमिनेंट मानेंगे और फीमेल जो है वो रिसेसिव मान के चलते हैं कंसिडरेशन। चलो इतना समझ में आया है। अब हम बैक क्रॉस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बैक क्रॉस में मे बी F1 हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग विच कैन बी क्रॉस बैक टू एनी वन ऑफ द पेरेंट इज कॉल्ड द बैक क्रॉस। तो सबसे पहले बैक क्रॉस में हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ करके देखते हैं, फिर रिसेसिव पेरेंट्स के साथ करके देखेंगे। तो मे बी फॉर अवर कंसिडरेशन मान के चलते हैं कि ये डोमिनेंट, यानी यहाँ हमारा डोमिनेंट कौन है, सपोज टू बी मेल है, तो मे बी इट इज सिंपली बैक क्रॉस। पर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ बोलेंगे एज द डोमिनेंट बैक क्रॉस। देन कंसिडरेशन में फिर से यहाँ पेरेंट्स करके कंसिडर करते हैं। पेरेंट्स में हम कंसिडर करने वाले हैं यहाँ पर एज टू बी द मेल और यहाँ पर कंसिडर करते हैं फीमेल। देन इनका फिनोटाइप, ओके, फिनोटाइप में बी कंसिडर्ड एज टू बी द मेल करके अगर हमने डोमिनेंसी में लेना है तो हमारा डोमिनेंट मेल कौन था, टॉल। ओके, तो अब F1 हाइब्रिड जो है यहाँ पर ये हमारा प्योर पेरेंट होगा और ये हमारा F1 हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग होगा। तो मे बी यहाँ पर हम ये लेंगे जो टॉल ही है, ओके, जो F1 हाइब्रिड है, पर यहाँ टॉल में क्रॉस करते समय मेल वर्सेस फीमेल होगा। अगर हमारा डोमिनेंट पेरेंट मेल है तो यहाँ से कौन क्रॉस करेगा, फीमेल ही क्रॉस करेगी। यानी मेल गमिट इसकी मेल गमिट से इसकी फीमेल गमिट ही क्रॉस करेगी, यानी इसके मेल में से मेल गमिट के साथ इसके फीमेल की फीमेल गमिट ही क्रॉस करेगी, तब भी अगली प्रोजेनी हमें फाउंड ऑफ होगी।
तो मे भी ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। ओके, अब इसका जीनोटाइप क्या है? चलो, ये हमारा प्योर पेरेंट था, मेल पेरेंट टॉल, तो मे भी कैपिटल टी और कैपिटल टी। लेकिन ये फीमेल है, बिलोंग कर रही है F1 हाइब्रिड से, तो मे भी इसका हेट्रोजाइगस है। इस तरीके से ये होमोजाइगस टॉल प्योर टॉल के लिए और ये हेट्रोजाइगस टॉल मे बी एज द हाइब्रिड टॉल के लिए। देन गमिट, यस, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। या प्योर गमिट एक मिलेगी हमें लाइक दिस, ये दूसरी मिलेगी लाइक दिस। यहाँ हमें ये होमोगमेटिक होगा, लेकिन ये हमारे लिए कौन होगा? हेट्रोगमेटिक होगा। ओके, चलो अब इनका क्रॉस करते हैं। क्रॉस में भी बाय बनेट स्क्वायर से चलो ढूंढते हैं। ये हुए हमारे मेल गमेट और ये हमारे सपोज टू बी फीमेल गमेट। तो हमारे मेल गमेट कौन है? होमोजाइगेटिक में होमोगमेटिक है, तो मे बी कैपिटल टी और कैपिटल टी। या हमारे फीमेल गमेट कौन है? मे बी हेट्रोगमेटिक है, दो तरह के गमेट पाए जाते हैं इसमें फीमेल में। सो लाइक दिस, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन यानी अलग अलग करना डिप्लॉयडी से, हैप्लॉयडी में गमेट फॉर्मेशन होना। सो डिप्लॉयडी में बॉडी में इस तरीके से एलेलिक पेयर होगी, तो एलेलिक पेयर हर एक गमेट में एक एक एलेलिक पेयर में से एक एक जीन बांट देती है। तो इस तरीके से ये एक गमेट बनेगी, ये दूसरी गमेट बनेगी। तो मे बी पेरेंट एज considered tall for the back cross is to be the homogametic, but parent as for the back cross is the heterogametic as female. Then यहाँ पर Punnett square से देखते हैं like this, ये एक रो, इसके लिए ये एक वर्टिकल कॉलम, ये हॉरिजॉन्टल इसके लिए और एक इस तरीके से, इसके लिए ये कॉलम तो इसके लिए ये कॉलम है, बिल्कुल इसके लिए ये कॉलम होगा तो इसके लिए ये कॉलम होगा। चलो क्रॉस करते हैं। मे बी मेल गमेट फ्यूजेस विथ फीमेल गमेट, यस। अगेन मेल गमेट फ्यूजेस विथ अ फीमेल गमेट, यस। मेल गमेट फ्यूजेस विथ अ फीमेल गमेट, अगेन मेल गमेट फ्यूजेस विथ अ फीमेल गमेट। अब क्या बोलते हैं, क्या कंसीडर हो रहा है? हम ऐसा बोल सकते हैं ये प्योर टॉल है, ये भी प्योर टॉल है, यस। ये हाइब्रिड, सॉरी, ये हाइब्रिड टॉल है, ये भी इस तरीके से हाइब्रिड टॉल है। अब हमें फिनोटाइप क्या मिला है? फिनोटाइप ओनली एंड ओनली वन ऑफ द टाइप मिला है, टॉल एंड टॉल। ओके, और फिनोटाइपिक रेशियो हमें क्या मिला है? पूरे 4 के 4 ऑफस्प्रिंग, यानी यहाँ कंसीडर करते हैं हम लोग कि 100% एक ही फिनोटाइप मिला है, 100% एक ही टॉल इंडिविजुअल पाए गए हैं, ऑल टॉल, जिसे हम बोलेंगे एज 100% टॉल है, 100% सिमिलर फिनोटिपिकली इंडिविजुअल जन्म लेते हैं, यानी जिसे हम ऑल टॉल बोलेंगे। ओके, तो मे बी ये क्यों आया? तो ये एक बैक क्रॉस था, पर बैक क्रॉस कौन सी थी? हमारी डोमिनेंट बैक क्रॉस थी, कि जो हमारा F1 हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग है वो अगर डोमिनेंट पेरेंट के साथ बैक जाके क्रॉस करता है अपने ही पेरेंट्स के साथ, इसका ही जो इंडिविजुअल है F1 हाइब्रिड जो इंडिविजुअल था, ये अगर क्रॉस करता है तो ऑल जो इंडिविजुअल्स ऑफस्प्रिंग्स है वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के पाए जाएंगे, सिमिलर ट्रेट्स की होंगी। लेकिन इनकी जीनोटाइप अगर देखेंगे तो जीनोटाइप 2 तरह से पाई जाएगी। तो मे बी जीनोटाइप इज कैपिटल टी और दूसरा है हाइब्रिड यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, एक प्योर टॉल के लिए, एक हाइब्रिड टॉल के लिए। और यहाँ पर जीनोटाइपिक अगर रेशियो देखते हैं तो मे बी ये 2 ने जन्म लिया है, ये 2 ने, यानी यहाँ जीनोटाइपिक रेशियो कौन सा है? 2:2 है। तो इस तरीके से कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर ऑल टॉल है, लेकिन यहाँ पर प्योर जीनोटिपिकली टॉल है और हाइब्रिड जीनोटिपिकली 2 इंडिविजुअल्स है। तो मे बी इस तरीके से ये हमारा बैक क्रॉस हुआ, बट डोमिनेंट बैक क्रॉस, यानी यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि F1 हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग which can be crossed with any one of the parent as dominant parent. Then followed as to be the next one is the recessive, dominant, then recessive as हमारी recessive कौन है? फीमेल।
has to be the back cross. ठीक है. देन कंसिडरेशन में फिर से वही पेरेंट्स हमारी रिसेसिव कौन है, फीमेल है. ओके, चलो यहाँ पहले ले लेते हैं प्योर. ड्वार्फ के लिए प्योर पेरेंट्स करके कंसिडर करते हैं. प्योर पेरेंट्स. नेचुरल है, क्रॉस किसके साथ होगा, मेल के साथ होगा. अब फिनोटाइप, यहाँ स्मॉल टी सॉरी यहाँ पर फिनोटाइप है ड्वार्फ, क्योंकि हमारा जो पेरेंट है वो ड्वार्फ है, फीमेल. और यहाँ पर रिसेसिव एज, और यहाँ पर हाइब्रिड एज टू बी टॉल है. अब जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप यहाँ पर इस तरीके से स्मॉल टी का होमोजाइगस है, पर यहाँ F1 हाइब्रिड का मेल ऑफस्प्रिंग है, तो में भी ये हेट्रोजाइगस है. सो में भी गमिट्स देखते हैं इस तरीके से, ये होमोगमेटिक है बट ये हेट्रोगमेटिक है. चलो इसकी क्रॉस देखते हैं, मे बी लाइक दिस, इस तरीके से. सो कंसिडरेशन में यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर स्मॉल टी, यस, यहाँ पर मे बी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर स्मॉल टी. यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये टॉल दे रहा है, ये ड्वार्फ दे रहा है, ये फिर से टॉल दे रहा है, ये ड्वार्फ दे रहा है. ओके, तो इसके ऊपर से हमारा रेशियो क्या तय कर सकते हैं हम लोग, फिनोटाइप क्या है. यहाँ हमें दो मिली है, एक टॉल और एक ड्वार्फ. तो मे बी फिनोटिपिकली रेशियो हमारा टॉल कितनी है, हाइब्रिड, सॉरी यहाँ पर हाइब्रिड टॉल बोल सकते हैं, पर यहाँ दिखने के लिए कोई हाइब्रिड नहीं दिखता. हमारी कंसिडरेशन में ओनली टॉल है. हम जानते हैं कि हाइब्रिड टॉल है 2, और मे बी वर्सेस एज टू बी रेशियो जो है हमारा ड्वार्फ का वो 2 है. तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ट्विस्ट देख रहे हैं. ओके, अब जीनोटाइप यहाँ पर नोन है. यहाँ पर हमारा जीनोटाइप जो है वो पूरी तरीके से नोन है. एक हाइब्रिड टॉल के लिए है, प्योर टॉल यहाँ पर नहीं पाया जाएगा. ओके, और दूसरा जो है मे बी कंसिडरेशन में जीनोटाइप अगर देखते हैं तो वो रिसेसिव के लिए है. जीनोटाइपिक रेशियो में अगर देखेंगे हम लोग तो हाइब्रिड टॉल के लिए 2 जन्म ले रहा है एज टू बी द यहाँ पर 50-50. तो बिल्कुल उसी तरीके से ये भी 2 है और ये भी 2 है. ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है, तो ट्विस्ट देखेंगे हम लोग. यहाँ पर जो हमने डोमिनेंट बैक क्रॉस लिए थे, ये भी बैक क्रॉस है और ये भी बैक क्रॉस है. ओके, मैं सिर्फ आज बैक क्रॉस करके शोन कर रही हूँ. तो यहाँ पर डोमिनेंट बैक क्रॉस करके हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर रिसेसिव बैक क्रॉस करके पढ़ रहे हैं. तो ये जो डोमिनेंट बैक क्रॉस है इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि F1 हाइब्रिड जो है वो अपनी प्योर पेरेंट्स हैज टू बी द डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करता है. तो जितनी भी इंडिविजुअल यहाँ पाई जाती है वो फिनोटिपिकली अलग रेशियो में होता है और जीनोटिपिकली अलग रेशियो में होता है. पर यहाँ पर ट्विस्ट ये है, हमने कहा कि यहाँ का जो रिसेसिव जो पेरेंट्स का कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से डिस्कार्ड हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है. ओके, लेकिन रिसेसिव बैक क्रॉस में यहाँ पर वही सेम टू सेम वही F1 हाइब्रिड जो ऑफस्प्रिंग था वो अपने प्योर पेरेंट्स के साथ ही बैकली क्रॉस करता है. यहाँ पर हमने फीमेल एज ड्वार्फ के साथ, क्योंकि रिसेसिव फीमेल थी. इसमें जब इंडिविजुअल फाइंड ऑफ होते तो यहाँ पर फिनोटाइप और जीनोटाइप इज इक्वल टू सिमिलर रेशियो में पाया जाता है. एज टू बी द 2 टॉल है तो 2 ड्वार्फ है. बिल्कुल जीनोटिपिकली 2 टॉल है, यहाँ हाइब्रिड भला ही टॉल है, और यहाँ 2 रिसेसिव एज ड्वार्फ है.
तो यहाँ पर हम ऐसा बोलेंगे कि 50-50% यानी टॉल भी 50% पाए गए हैं और ड्वार्फ भी 50% पाए जाते, यानी जो प्योर पेरेंट्स की जो कैरेक्टर्स थी टॉल एज लाइक एज टू बी द ड्वार्फ, ये दोनों कैरेक्टर्स हमें यहाँ वेल नोन पाई जाती है, वेरीफाई हो जाती है, टेस्ट हो जाती है। तो मे भी इस तरीके से यहाँ पर दोनों फिनोटाइपिक रेशियो एज वेल एज जीनोटाइपिक रेशियो इज इक्वल टू होती है 2:2, या जिसे हम 50-50% बोलेंगे। तो दोनों हमें यहाँ पर रिसीव हो जाती है, यानी इसी को फिर रिसेसिव बैक क्रॉस को या आगे चल के टेस्ट क्रॉस भी कहा गया है। तो हम अलग टॉपिक में इसे अच्छे से रिसेसिव बैक क्रॉस करके नहीं, तो हम उसे टेस्ट क्रॉस करके पढ़ेंगे। तो जिसमें यहाँ पर टेस्ट क्रॉस का मतलब ये है कि ये टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस ही है, बट F1 hybrid which can be crossed with only and only crossed with the recessive parents, but to check, to test, to verify, to find out both of the both of the trait of a parent's character, यानी पेरेंट्स की जो दोनों ट्रेट्स की कैरेक्टर्स थी वो फिर से रिटर्न पाई जाती है, वेरीफाई कर सकते हैं, हम उसे फिर से फाउंड ऑफ कर सकते हैं, फिर से उसे हासिल कर सकते हैं। तो मैं भी यही चेक करने के लिए जो क्रॉस होता है, भलाई वो बैक क्रॉस ही है, लेकिन उसे नाम दिया गया है टेस्ट क्रॉस। तो इस तरीके से हमने आज बैक क्रॉस करके दो पार्ट में पढ़ा है, डोमिनेंट बैक क्रॉस एज वेल एज द रिसेसिव बैक क्रॉस। सो here is we have just to be explained by with the help of an example and flow sheet chart। आप इस तरीके से एक तो पनेट स्क्वायर से शोन कर सकते हो या फ्लो शीट से यहाँ पर शोन कर सकते हो। सो आपको अगर लिखना है तो इस तरीके से वेल डिफाइंड में ही आपको लिखना है। कई जगह पे सिर्फ यहाँ तक लिख के छोड़ देते, ओनली यहाँ एक लाइन लिखी जाती है, F1 hybrid which can be crossed with any one of the parent is known as to be the back cross। तो वो भी सही है, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू।